guys, welcome back to my channel Art of Law. Today my topic of discussion is writs. What is the meaning of writ? Writ is a written command in the name of the court as well as other legal authority to act or abstain from acting in a particular way. In simple words, it is a legal command written by the judge or other authority under the administrative and judicial jurisdiction to such a person or entity to act or not to act in a particular way. We have two kinds of writs, prerogative writs as well as the ordinary writs. Prerogative writs are the writs for enforcement of fundamental rights, and ordinary writs are the writs for the enforcement of fundamental rights as well as other legal rights. Alright, who can issue a writ? Writ can be issued by the Supreme Court and the High Court. Moreover, writs can be issued by the district courts as well, which is mentioned under Article 32 Clause 3. I will read it for you. Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by Clause 1 and 2 of Article 32, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2 of 32. वेयर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी अदर कोर्ट को पावर्स दे सकते हैं कि वो एज अ सुप्रीम कोर्ट जैसे रिट्स इशू करता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वही रिट्स इशू कर सकता है. ओनली इन द केस व्हेन पार्लियामेंट एम्पावर्स दैट कोर्ट. ओके, देन we will discuss it later, the difference between High Court writs and the Supreme Court writ. First of all, we talk about the writs, prerogative writs per se. We have 5 prerogative writs under Article 32 Clause 2. Habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto and prohibition. First of all, we are going to discuss the habeas corpus. Habeas corpus is a Latin maxim which means you may have the body. Here the body does not mean the dead body, only mean the person. Habeas corpus बेसिकली रिट होती है कि जहाँ पे किसी पर्सन को इलीगली कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल डिटेन करता है तो कोर्ट वहाँ पे रिट इशू करता है उस पर्सन को रिलीज करने के लिए. In simple words, if I talk about the habeas corpus writ, basically an order issued by the court to a person who detained the another person to produce the body of the person who detained before it. मतलब कि कोर्ट के पास उस पर्सन को प्रोड्यूस करना होगा. ये जो रिट है एक रेयर प्रेरोगेटिव रिट है जहाँ पे हम प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी रिट इशू कर सकते हैं. नॉर्मली प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है रिट्स इशू नहीं होती. जनरली ये स्टेट के अगेंस्ट होती हैं रिट्स एंड दीज रिट्स आर अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज. ओके, now the habeas corpus writ when not issued, there are some points you have to be noted. Lawful detention, arrested in the contempt of court, detention is by competent court. जहाँ पे ये 3 पॉइंट्स होंगे तो वहाँ पे ये रिट इशू नहीं किया जा सकता. हैबियस कॉर्पस जो रिट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलिब्रेटेड रिट ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्योंकि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. As in Magna Carta in 1215, there was a dispute, rather a fight for liberty. That's why we find it huge weightage of this writ. If I talk about the object of this writ, the basic object is to give a quick and immediate remedy to the person who is ostensibly detained. अगर हम बात करें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट आती है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट का जो स्कोप था और इंक्रीज किया. द फैक्ट ऑफ द केसेस, यहाँ पे एक प्रिजनर था जिसने डायरेक्ट जेल से जज को एक लेटर लिखा जिसमें उसने लिखा कि यहाँ पे जो जेल वार्डन है सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं और एंड टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ टू एक्सट्रैक्ट द मनी फ्रॉम माय रिलेटिव्स.
Then Supreme Court held that tortures, degrading the human dignity, and any traumas carried on the person in legal custody are all covered under the writ of habeas corpus. Second one is mandamus. Mandamus means activity. Basically, it is a command issued by the court to the public official to perform your official duties. इसको मैंडामस को इशू किया जाता है कि किसी पब्लिक ऑफिशियल को कि अगर कोई पर्सन अपनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहा तो वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभाए प्रॉपर से. Issued to government, corporate body, organization or to lower courts, not against private individual. ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट कभी भी इशू नहीं की जाती. इट इज़ हाईली प्रेरोगेटिव रिट और एक्सटेंसिव रेमेडी. किंग यूज टू गिव अ कमांड. किंग इसको यूज करते थे कोई कमांड देने के लिए लोअर अथॉरिटीज को. द रिट ऑफ मैंडामस कांट ऑब्टेन only against executives but also against the judiciary as well as the quasi-judicial authorities. Four conditions are there for the mandamus writ. Petitioner show he has legal right to obtain legal duty. Such a right imposed either by constitution or by the statutory law, नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट. जो भी हमारी ऑफिशियल ड्यूटी है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं होनी चाहिए, वो किसी स्टैट्यूटरी लॉ के अगेंस्ट होनी चाहिए, सॉरी लॉ के अंडर होनी चाहिए. ड्यूटी मस्ट बी मैंडेटरी नॉट डिस्क्रिशनरी. तभी रिट इशू होगा अगर ड्यूटी जो है मैंडेटरी है. द राइट विच इज़ क्लेम्ड शुड बी जुडिशियली एनफोर्सिएबल राइट. जो राइट है हमारा वो जुडिशियली एनफोर्सिएबल होना चाहिए. Next is against whom this writ is not issued. Against the constitutional head of the center and state, that is president and the governor. Also against the chief justice of high court and judicial officers of the high court when they acted in the judicial capacity. इन केसेस में हम मैंडामस की रिट इशू नहीं कर सकते. The third one is the writ of prohibition. Prohibition writ is to prohibit, to forbid or to stay. यहाँ पे क्या है कि सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को और एनी अदर ट्रिब्यूनल को रिट इशू करता है कि अगर कोई भी ऑर्डर विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन और बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन पास किया गया है तो उसको उसी टाइम स्टे कर दिया जाए. There are few points when the superior court issue this writ: when there is a want of jurisdiction, when lower court go beyond the jurisdiction, and when lower court does not follow the principles of natural justice, and when the lower court pass the order against the fundamental rights of the individual, and and enforcing the law which are unconstitutional and ultra-vires. In these cases the writ of prohibition issued. And another one is the writ of quo warranto. क्यू वारंटो रिट जो है वो पास की जाती है बाय व्हाट अथॉरिटी के लिए कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन कोई भी ऑफिशियल ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो वो किस अथॉरिटी से कर रहा है. अगर वो विदाउट क्वालिफिकेशन है तो ये रिट इशू करके हम उसको उस ऑफिस से निकलवा सकते हैं. ये काफ़ी टाइम पहले की बात है कि सेंट्रल विजिलेंस ब्यूरो में एक केस आया था कि जहाँ पे एक पर्सन ने ज्वाइन किया था इस ब्यूरो को बट विदाउट एनी क्वालिफिकेशन. देन ये इसके रिगार्डिंग रिट डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में एंड उस पर्सन को वहाँ से लीव करना पड़ा था. यहाँ पे जो रिट इशू करते हैं हम क्यू वारंटो की, यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि वेदर लॉ ऑफ लेच इज अप्लाइड ऑन दिस रिट. द क्वेश्चन इज येस but in some extent because law of laches apply होता तो है बट कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेन डिले है तो उसे अवॉइड नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. इसके कंडीशंस क्या हैं कि ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस, ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंटिव इन नेचर एंड ऑफिस शुड हैव बीन क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन. Or person occupying his seat, the person who is respondent can't be legally qualified for this office. जो person इसको इस सीट को ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये रिट डाली जा सकती है. All right, the next one is our writ is certiorari.
सर्शियरी रिट जो है वो एक क्यूरेटिव नेचर की रिट है। यहाँ पे जो भी काम हो चुका है उसको क्योर करने के लिए ये रिट डाली जाती है। ये जो रिट है सुपीरियर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को कि इट सेज रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग एंड पेंडिंग केसेस ट्रांसमिट इमीडिएटली और कमिट टू सुपीरियर कोर्ट एंड ही विल गिव डिसीजन ऑन इट टू इंश्योर द स्पीडी जस्टिस एंड एडिक्वेट जस्टिस टू द इंडिविजुअल। ओके, इन द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस केएस एडवानी का केस है 1954 सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशंस ले डाउन की थी। वो क्या थी कि द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी विच इज चैलेंज्ड मस्ट बी अ जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं की जाती। The second condition is the challenge must be in respect of the excess of jurisdiction, want of jurisdiction, and the order passed in the contravention of fundamental rights. Then in that cases कोर्ट क्या कर सकता है कि क्वेश कर सकता है ऑर्डर को। किस किस ग्राउंड्स पे ऑर्डर को क्वेश किया जा सकता है? व्हेन द लोअर कोर्ट गो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन और डिसीजन अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस एज वेल एज द एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। इन ग्राउंड्स पे हम सर्शियरी की रिट को इशू कर सकते हैं। इन 1991 एक केस आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सर्शियरी रिट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी पास की जा सकती है, बट इट डजंट इशू अगेंस्ट द पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल। फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल वी हैव ऑर्डिनरी रिट्स जो कि हम आर्टिकल 226 में पढ़ते हैं। आज हमने बात की है प्रेरोगेटिव रिट्स की। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल सो